Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Anju Sharma, your chemistry mentor, and today we are going to start our second chapter, which is acids, bases and salts. We are doing it in two parts, and our first part is about acids and bases. Before that, I would like to ask you a question. How do you start your day with? Well, I start my day by brushing my teeth. And why do we need to brush our teeth? Well, over the night, the leftover food particles get stuck on our tooth and they produce acid. And we use toothpaste to brush our teeth, which contains calcium carbonate, which is a base. And whenever acid combines with base, it gives you salt. And salt is also an essential component of toothpaste. You must have heard in commercials. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? Well, मेरे टूथपेस्ट में तो definitely नमक है. मगर ये नमक हमारे टूथ के लिए required क्यों है? This is to make our tooth white, bright and shiny. So let's start with the chapter. We'll start with the classification of compounds based on their chemical properties. So based on chemical properties, we can classify compounds in three types: acids, bases and salts. Starting with an acid, what is an acid? It is defined as the one which produces hydrogen ions in water. That is, whenever you add water to acid, then H positive ions are produced, which are called hydrogen ions or proton. लेकिन ये नेसेसरी नहीं कि हर कोई चीज़ जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करे वही एसिड है. There are acids जो H पॉजिटिव नहीं प्रोड्यूस करते, but they are still acidic in nature. So we can say that acidic behavior means all compounds containing hydrogen are not acids. All acids do not show acidic behavior in the absence of water. Like you do not need to add water every time to produce H positive ion to show acidic nature of an acid. Like acidic behavior, you have two parts. One is a strong acid and another is a weak acid. अब strong acid उसको बोलते हो जिसमें H positive ions को donate करने की capacity काफ़ी ज़्यादा होती है. That acid is considered as strong acid. And आप weak acid उसको बोलते हो जो कि H positive ions का number कम देता है. मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी या तो कम है या फिर उसका नंबर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है. Another classification is based on organic and mineral acids. Like organic acids आप किसको बोलते हो? Which are derived from plants and animals. और ये generally carbon containing compounds होते हैं और nature में they are weak in nature. For example, acetic acid, citric acid, lactic acid, हम इनको consume कर पाते हैं क्योंकि ये nature में weak होते हैं. और दूसरा है मिनरल एसिड्स जो कि प्रिपेयर होते हैं या फाउंड होते हैं इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. एंड फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. और ये जनरली स्ट्रॉन्ग है नेचर में. स्ट्रॉन्ग मीन्स दे कैन ईजिली प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस एंड इन लार्जर नंबर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कि कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की. दे हैव अ सार टेस्ट जो कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट है एसिड का, जो हम शुरू से एसिड को क्लासिफाई करने के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी उसके अकॉर्डिंग एसिड्स ऑलवेज हैव अ सार टेस्ट. एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. Acid solutions conduct electricity, which means they easily produce H positive ions and those ion on movement gives electricity. Acids react with metals to form hydrogen gas. इसके बाद ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम डिटेल में करेंगे और हर प्रॉपर्टी में आपको ये देखने को मिलेगा कि हमेशा एसिड एक बेस के साथ कंबाइन करके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस कर रहा होगा.
सॉल्ट तो डेफिनेटली करेगा, वाटर की जगह पर और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर वो सिर्फ मेटल के साथ कंबाइन करता है तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिलेगी सॉल्ट के साथ। नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो एसिड जब मेटल मेटल की जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्साइड्स हों, ऑक्साइड्स हों, कार्बोनेट्स हों, वो सब बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये एसिड को जब भी आप एक बेसिक चीज़ के साथ कंबाइन करोगे यू विल ऑलवेज गेट सॉल्ट, और क्योंकि ये कंपाउंड कार्बोनेट है तो इसमें से इवॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड। Next is acids react with bases or alkalis to form salt and water. Again the key line is this, acid is reacting with bases. Alkalis होते हैं aqueous bases, आप जब पानी में बेस को डिसॉल्व कर देते हो। And acids react with metal oxides. Again metal oxides are basic in nature. So in short you're again reacting an acid with a base. And next is acids have corrosive nature. Acids corrosive होते हैं नेचर में, they are very harmful for our skin. So next is reaction of acid with metals. आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया जा रहा है कि जब भी कोई एसिड, जैसे हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं which is H2SO4, when this is reacting with zinc you're getting ZnSO4 plus hydrogen. So we are reacting acid with metal to produce salt and hydrogen gas. ये जो एरो है अपवर्ड एरो, दिस डिपिक्ट्स कि ये जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में यहाँ से एस्केप कर रही है, और अगर आप इस गैस के आगे कुछ जला देते हो, एक्सपेलेंटर जला देते हो, लिट कर देते हो उसको, तो एक पॉपिंग साउंड वो प्रोड्यूस करती है जो कि कंफर्म करती है कि ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, कि अगर आप एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे you'll get salt plus water plus carbon dioxide. So this is the acid which you have taken. HCl is an acid and metal carbonate, calcium is a metal, you have taken calcium carbonate which is basic in nature, and as a result you're getting calcium chloride which is a salt, and along with this you're getting water, and because it is a carbonate ion which is present here, so आपको carbon dioxide gas भी इसमें obtain होगी। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्शन क्या है लाइम वाटर पे। तो अगर हमने क्लियर लाइम वाटर लिया है और उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, देन इट टर्न्स मिल्की। ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो कंफर्मेटरी टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये आपको हर क्लास में यूज होता है। सो यू नीड टू लर्न दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बट व्हाट इफ यू पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस, देन अगेन द सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। ये क्लियर सॉल्यूशन आपको फिर से मिलेगा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर देते हैं। फिर है रिएक्शन ऑफ acid with base, that whenever you react an acid with base you're getting a salt and water along with it. NaOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। जितने भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो जब भी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन करेंगे दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड यू आर रिएक्टिंग इट विद एसिड HCl. So here Na is 1 positive, hydroxide is 1 negative, and you have H positive and Cl negative. So what happens? This Na combines with this Cl negative and this H positive combines with this OH negative to give you salt, which is NaCl plus water. So this is the basic reaction जो आपके हर टाइप ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज आप एसिड्स की पढ़ रहे हैं या बेस की आप पढ़ते हैं, ये कॉम्बिनेशन वैसा ही रहेगा।
देन रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, कि अगर आपने कोई मेटल की ऑक्साइड ली है और उसको आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, जैसे सपोज आपके पास HCl है एंड यू हैव कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। Yes, this is balanced now, right? So next step, base plus non-metallic oxide gives you salt plus water. अब इसमें भी अगर आप इसकी इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करोगे, so whenever you're reacting a base with non-metallic oxide which is acidic in nature, again you are going to get salt plus water. Then reaction of acid with water. You need to know this, that you cannot add water to an acid. This is a very exothermic reaction and your test tube can burst. So what you have to do, you have to add acid to water, that to drop wise, ताकि जो पानी है वो उस heat को absorb कर सके और वो जो reaction है वो आपके control में हो. So this is a basic precaution which you should follow while you're working in the practical labs. Then how strong is acid and base? So like I told you that acid is giving H positive ions. Greater the number of H positive ions and faster the donation of H positive ions makes the acid strong. Similar is the case with the base. If you're having OH negative ion in larger number and that base is giving off OH negative ion at a fast rate, that means that base is considered as a strong base. Group 1, group 2 forms strong bases and mineral acids are strong acids. Strong acid, for example, you have HCl. H positive ion can be easily donated by the Cl negative and this gives it characteristic acidic properties. Then corrosive nature of acids, like you can see that if you are putting this cotton cloth on an acid, then it is corroding it. You know, it is getting burnt because it is very corrosive in nature. So it should be handled carefully. वीक एसिड्स जो हैं वो इजीली कंज्यूम किए जा सकते हैं, जैसे केचप में आपका एसिड होता है या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पीते हैं, दैट इज वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच गिव्स यू H2CO3 which is a weak acid, and acetic acid is CH3COOH. So इनकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी कम है, जो कि हमारी बॉडी को कंज्यूम करने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता. But you cannot consume mineral acids. Then oranges में present होता है citric acid और they also contain ascorbic acid जिसको हम विटामिन C के नाम से भी जानते हैं. वीक एसिड से एसिटिक एसिड हैज़ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि उसमें जो H पॉजिटिव आयंस हैं उनको गिव ऑफ करने की स्ट्रेंथ भी कम है और नंबर भी कम है. तो स्मॉलर द नंबर ऑफ आयंस विच इज गिवन बाय द एसिड, वीकर इट इज, एंड वीकर एसिड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, right? So you'll get a dim light if you are using a weak acid, but you'll get a bright light if you are using a strong acid. Then uses of acids, कहाँ आप यूज़ कर सकते हो? तो बहुत सारे यूजेस हैं एसिड्स के. आप उनको फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हो. जब प्लास्टिक्स बनाने हैं, प्लास्टिक की सिंथेसिस में काफ़ी एसिड्स यूज़ होते हैं. काफ़ी एसिड्स कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ होते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में. और सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलॉन, रेयॉन, ये सब बनाने के लिए भी
एसिड्स यूज होते हैं। देन डिटर्जेंट्स का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज आल्सो एन एसिड, एंड कार बैटरीज में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नापने के लिए भी हम उसको एसिड को एज अ मेजर ले लेते हैं कि हाँ इतना ये कंट्री सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम करिए, दैट मीन्स उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। So sulfuric acid is used in the manufacture of fertilizers, paints, dyes, chemicals, plastics, synthetic fibers, detergents, and explosives and car batteries. Nitric acid जो है that is used for making fertilizers like ammonium nitrate, explosives like TNT which is trinitrotoluene, and hydrochloric acid is used for removing oxide film from steel objects before they are galvanized and for removing scale deposits from inside of the boilers. हाई एसिडिटी, काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हाई एसिडिटी के, जैसे आप देख सकते हो दीज फिश हैव बीन किल्ड बाय द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दे कंबाइन विद द रेन वाटर टू गिव ऑफ एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा आपको मिलेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, and when sulfur dioxide reacts with water you get H2SO3 which is sulfurous acid. Similarly you can see calcium carbonate is is being spread to the lakes to neutralize the acid which is present in the lake water. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस है तो जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी वाटर को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में था, तो जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने स्टडी किया वो हमेशा एक बेस था। तो एक्चुअली वी हैव कवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस अलोंग विद एसिड्स, बट लेट्स स्टडी इन डिटेल व्हाट डू वी कॉल बेसिस। सो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, जो कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट है एक बेस को डिफाइन करने का। बेसिस आर केमिकली opposite to acid. A base is a chemical substance which can neutralize an acid. एक बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे बेस अमोनिया जो है NH3 आपने सुना होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है और ये यूज होता है टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए या सिंक्स को क्लीन करने के लिए। Then strong bases and weak bases. All bases produce hydroxide ion which is OH negative ion when dissolved in water. For example NaOH, KOH, ये सब हैं strong bases. And strong bases में which completely ionize in water and thus produce large amount. एक तो complete dissociation होनी चाहिए उसमें और large number में आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन अगर obtain होते हैं उसको आप strong base बोल सकते हो। और वीक बेस किसको बोलोगे, जो कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं शो कर रहा, पार्शियली आयनाइज्ड है वाटर में और जो कि स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा उसको आप बोलोगे वीक बेस। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग बेसिस में आती हैं बिकॉज ग्रुप 1 इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, पॉजिटिव आयन बन जाएगा और उतना ही इजीली आपकी हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। जितना इजीली फॉर्म होगी उतना इजीली वो मूव कर सकेगी और उतना इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकती है और उतना अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, दे हैव बेटर टेस्ट। अगर आप उनको टच करो तो आपको सोपी सा फील होगा, जैसे बहुत आप सोप को टच करते हो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वैसे ही बेसिस का टच होता है। एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो एसिड है वो ब्लू को रेड में चेंज करता है, बेस उसको ऑपोजिट करेगा बिकॉज दे आर केमिकली ऑपोजिट, राइट। एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपके पास NaOH है तो वो फटाफट Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, जिसकी वजह से उन आयंस की मूवमेंट होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे।
जो बेसिस हैं वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और जब भी वो रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ they'll always give hydrogen gas. And bases react with acid to form salt and water like we did, and bases react with non-metal oxides to form salt and water because non-metal oxides जो हैं acidic होंगी नेचर में, तो बेस और एसिड जब भी कंबाइन करते हैं they always give you salt and water. एंटासिड्स किसको बोलते हैं? जो कि एसिडिटी को कर्ब करती हैं। जैसे हम घर में यूज़ करते हैं, जेलुसिल यूज़ करते हैं या डाइजीन यूज़ करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एंटासिड्स। क्यों हैं वो एंटासिड्स? क्योंकि वो बेसिक है नेचर में। ऐसा क्या है उसमें है ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब मैग्नीशियम के और सोडियम के कुछ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स या कार्बोनेट्स जो कि उसको बेसिक बनाते हैं नेचर में और हमारे जो पेट की pH है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। सो एंटासिड्स हम यूज़ करते हैं एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। देन अदर यूजेस ऑफ बेसिस क्या हैं? NaH इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयॉन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम होता है? कलर को रिमूव कर देना। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, हम एंटासिड्स जो लेते हैं जेलुसिल वगैरह उनमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं, तो मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड, मेटल की हाइड्रोक्साइड बेसिc in nature and that neutralizes the excess acid in the stomach and cure indigestion. Then sodium carbonate is used as a washing soda and for softening of hard water. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हो, दैट इज यूज्ड इन बेकिंग सोडा इन फॉर कुकिंग फूड और फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर्स एंड फॉर एंटासिड्स टू क्योर इंडाइजेशन। सो ये थे यूजेस बेसिस के, जिसमें से आई एम श्योर आपने कभी ना कभी केक को बेक करने के लिए बेकिंग सोडा जरूर यूज किया होगा। सो लेट्स समराइज दिस चैप्टर। We talked about acids and bases कि एसिड वो हैं जो अपनी H पॉजिटिव आयंस इजीली डोनेट कर सकते हैं एंड इन लार्जर नंबर, और बेस वो हैं जो अपनी हाइड्रोक्साइड या OH नेगेटिव आयन को इजीली डोनेट कर सकते हैं एंड इन लार्जर नंबर। जो लार्जर नंबर में देगा वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो लेस नंबर में देगा या कंप्लीटली आयनाइज नहीं कर पाएगा उनको हम बोलेंगे वीक एसिड या वीक बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, जब आप मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा यू विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट which is basic in nature, so when acid reacts with metal carbonate you'll get salt plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी। Then if acid reacts with base, it will always give you salt plus water. Metal oxide is basic in nature. So again, when you react acid with metal oxide, which is basic in nature, you'll get salt plus water. Then non-metal oxide is acidic in nature. So when you react base with non-metallic oxide, you're going to get salt plus water. And whenever you are adding acid or a base to water, you need to be careful because they are very explosive in nature. So जब भी आपको acid में पानी mix करना है, you should always add acid, that too drop wise into the water. Right, so that was all for this topic. We will be back again with the rest of the chapter. Till then, keep learning, keep revising. Thank you.